Good morning, 9th class. I'm your Park Studies teacher. Students, last time we started our topic 3rd June plan, and last time we discussed that the 3rd June was a day when the plan for partitioning of the subcontinent was approved, and that the Lord Wavell, after his failure, he was replaced by the Mountbatten, and when Mountbatten he came into subcontinent, he met with the Hindus and the Muslim leaders, and similarly he met with the princely states, the Rajas and the Nawabs, and then he decided that the only solution for the subcontinent is to divide the subcontinent into two separate countries. Congress and Mountbatten, they together made the plan that the new country should be so weak that it should be unable to survive at its own. So from today onwards we are going to start the next heading, all parties conference, on the page number 40. Please have a look at it. When Mountbatten came back from the London, he convened mean ijlas bulana, an all parties conference. Qaid-e-Azam Liaquat Ali Khan, Sardar Abdul Rab Nishtar, Patel Nehru, Sardar Patel, Acharya Kripalani and Bakev Singh participated in it. These leaders, they participated in this plan and in this conference. Viceroy of India explained the various aspects of partition plan, and in this conference Mountbatten ने जो partition का जो plan था उसके different aspects को जो है वो explain किया कि partition किस तरह से की जाएगी, क्या formula उसके लिए जो है वो use किया जाएगा. ऑन 3 जून 1947 इसी कॉन्फ्रेंस का सेकंड सेशन हुआ, जिसके अंदर दोबारा से इसी चीज़ को डिस्कस किया गया कि हम लोग किस तरह से सब कॉन्टिनेंट को पार्टीशन करेंगे. तो कांग्रेस और ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया. कायद-ए-आज़म ने उस प्लान को अनविलिंगली अप्रूव कर दिया, क्योंकि कायद-ए-आज़म जानते थे कि मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा अनजस्ट इसके अंदर डिवीज़न करके मुसलमानों को उनके बहुत सारे राइट्स और उनके बहुत सारे इलाकों से महरूम किया जा रहा है. But since he had no other option, so he had to approve this plan. And then Qaid-e-Azam he went to the radio station और वहाँ पर उन्होंने मुसलमानों से एक खिताब किया. He did a speech and he ended his speech with the slogan Pakistan Zindabad. And then there are the main points of the 3rd June plan. In these points we are going to read कि किस province को किस तरह से divide किया गया, because these provinces they were huge, they were very large. और जैसे कि पंजाब की एग्ज़ाम्पल लें तो पंजाब इज़ अ प्रोविंस जो पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त दोनों में मौजूद है. ये एक बहुत बड़ा प्रोविंस था. इसको डिवाइड करने का काम एक बहुत मुश्किल काम था. इस प्रोविंस के एक इलाके के अंदर, एक पार्ट के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत थी और दूसरे इलाके के अंदर, उसके दूसरे हिस्से में हिंदुओं की जो है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी थी. तो इसको डिवाइड करने के लिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो वोटिंग करेंगे, एंड दे विल डिसाइड दैट इफ़ दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान और इफ़ दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द इंडिया. Similarly, the same strategy was adopted for the Bengal province. Bengal is the province that is currently known as the Bangladesh. Bangladesh was a part of the Pakistan. When the Pakistan was created in 1947, Bangladesh was not a separate country, it was the part of the Pakistan and it was the province of the Pakistan. So Punjab and Bengal, they were divided on this formula that the Muslim majority and the Hindu majority district, the people, they will vote from there. उनके जो लोग हैं वहाँ पर दे विल वोट, और उसको वोट करने के बाद वहाँ पर जिन एरियाज़ ने पाकिस्तान में जाने के लिए वोट किया होगा दे विल बी इंक्लूडेड इनटू द पाकिस्तान, एंड द पीपल ऑफ द एरियाज़ दैट विल वोट फॉर द इंडिया दे विल बी इंक्लूडेड इनटू द हिंदुस्तान. सो लोगों की विशेस के अकॉर्डिंग ये डिवीज़न उन्होंने कहा कि हम लोग करेंगे. द सेकेंड हेडिंग इज़ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. दिस इज़ द ओल्ड नेम ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा. पाकिस्तान का जो प्रोविंस अब खैबर पख्तूनख्वा होता है, पहले उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नेम से बोला जाता था. तो NWFP की डिवीज़न के लिए ये डिसाइड किया गया कि वहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाएगा. रेफरेंडम इज़ काइंड ऑफ एन इलेक्शन, and in referendum people answer to the question. For example, they had to answer, do you want to be the part of Pakistan or India? So all those people who wanted to be the part of the Pakistan, they will vote for the Pakistan, and those who wanted to be the part of India, they had to vote for the India. So ये डिसाइड किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा NWFP के अंदर we are going to conduct a referendum and people will decide if they want to be the part of the Pakistan and India. Governor General himself will conduct this referendum. And then the Sindh. Sindh was also a very large province.
अ पार्ट ऑफ द सिंध वॉज ऑक्यूपाइड बाय द मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन और उसके दूसरे हिस्से में हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी. इन द करंट एरा पाकिस्तान के पास भी सिंध है और इंडिया के अंदर भी एक प्रोविंस जो है वो सिंध के नेम से है. असल में वो सिंध एक ही है जिसको एट दैट टाइम ऑफ डिवीज़न, एट दैट टाइम ऑफ पार्टीशन, उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था. वो पार्ट जिसने पाकिस्तान में आने के लिए वोट किया था वो पाकिस्तान का हिस्सा है और वो वाले एरियाज़ दैट वोटेड फॉर द हिंदुस्तान दे आर द पार्ट ऑफ द इंडिया नाउ. सिंध असेंबली वोट डिसाइड, ये फैसला किया गया कि सिंध की असेंबली डिसाइड करेगी द फ्यूचर स्टेट ऑफ द प्रोविंस थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द वोट. It would be decided whether the province wished to join Pakistan or India. The European members of the Sindh Assembly would not have the right to vote. Sindh Assembly के अंदर only Muslim and Hindu people they will vote. The European people they will not vote. सिर्फ हिंदुस्तान के मकामी लोग, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग जिनमें मुसलमान और हिंदू हैं, सिर्फ वो वोट देकर बताएंगे कि उन्होंने सिंध को पाकिस्तान का पार्ट बनाना है या सिंध को हिंदुस्तान का पार्ट बनाना है. द नेक्स्ट हेडिंग इज़ बलोचिस्तान. बलोचिस्तान उस वक्त तक एक सेपरेट प्रोविंस कंसिडर नहीं किया जाता था, इसलिए यह डिसाइड किया गया कि बलोचिस्तान की जो म्यूनसिपैलिटी और बलोचिस्तान का जो शाही जिरगा है, शाही जिरगा इज़ काइंड ऑफ एक ऐसी मेंबर होती हैं टीम्स, एक ऐसी टीम होती है जिसके अंदर उस एरिया के जितने भी बुज़ुर्ग हजरात होते हैं वो मिल बैठकर जितने भी मसले होते हैं उनसे रिलेटेड फ़ैसले कर लेते हैं और फिर उस एरिया के रहने वाले बाकी लोग उनके एहतराम में उनके फ़ैसलों को मानते हैं और जैसा उन्होंने कहा होता है वैसा ही करते हैं. सो इट वॉज डिसाइडेड कि बलूचिस्तान का जो शाही जिरगा है इट विल डिसाइड कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहिए या इंडिया का बनना चाहिए. तो व्हेन द शाही जिरगा सेट डाउन दे डिसाइडेड दैट बलूचिस्तान इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. एंड देन द डिस्ट्रिक्ट सिलहट. डिस्ट्रिक्ट सिलहट जो है वो एक सिटी है, वो आसाम के अंदर एक सिटी है. वैसे तो आसाम जो है वो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है और वो इंडिया के अंदर है, अभी भी इंडिया के अंदर आसाम नाम का एक प्रोविंस मौजूद है. लेकिन सिलहट उसका एक ऐसा सिटी था जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर रहते थे. तो ये डिसाइड किया गया कि सिर्फ सिलहट के लोगों को इस बात की आज़ादी दी जाएगी कि वो ये डिसाइड करें, वो रेफरेंडम के थ्रू डिसाइड करें कि उन्होंने आसाम में इंडिया का पार्ट ही बन के रहना है या वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं. इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिसाइड्स टू जॉइन द ईस्ट बंगाल, अगर ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ के लिए वोट दिया कि वो ईस्ट बंगाल यानी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, दे वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा. नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी प्रोविंस. इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जितने भी नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं जिनके अंदर आसाम आता है, सिलहट को मिला के वो इंडिया का हिस्सा बनेंगे. सिलहट को निकाल दिया जाएगा, इसके अलावा बाकी जितना भी आसाम का प्रोविंस है दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया. सिमिलरली बिहार, उड़ीसा, यूपी, सीपी, बॉम्बे एंड मदारस दे वुड बिकम द पार्ट ऑफ द इंडिया, उनको इंडिया का पार्ट बना दिया जाएगा. द लास्ट हेडिंग इज़ ऑफ द प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट्स वही वाली स्टेट्स हैं जिनको उनके नवाब और उनके राजा रन करते थे. इन स्टेट्स को गवर्नमेंट रन नहीं करती थी, इनके जितने भी डिसीजंस होते थे वो इनके नवाब और राजा लिए करते थे और इनकी जो बाकी की रियाया होती थी, जो बाकी के लोग होते थे वो उस डिसीजन को माना करते थे. तो ये डिसाइड किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर उस वक़्त 635 प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो उसके राजा जो हैं और उनके जितने भी नवाब हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनकी स्टेट को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए या इंडिया का हिस्सा बनना चाहिए. इनमें बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो भी पाकिस्तान में इंक्लूड हैं, जैसे कि बहावलपुर, जैसे कि सवात. दीज वर द प्रिंसली स्टेट्स जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी थी और ये पाकिस्तान में इंक्लूड हो गई थी. फिर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो इंडिया के अंदर इंक्लूड हुई थी. लेकिन एक प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जिसका राजा हिंदू था लेकिन वहाँ की 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमान थी. अब एज़ पर फार्मूला उस मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके को पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहिए था, लेकिन राजा ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ अपनी सेटिंग करके उसने इंडियन गवर्नमेंट से पैसे लेकर उस इलाके के लिए फ़ैसला दिया कि उसका इलाका जो है वो हिंदुस्तान के अंदर शामिल होगा. एंड दैट एरिया वॉज द कश्मीर. जब कश्मीर के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने हिंदुस्तान के अगेंस्ट जिहाद करने का फ़ैसला किया. और आपको पता है कि कश्मीर इशू एक ऐसा इशू है जो आज तक अनसॉल्व चला आ रहा है, जिसकी बहुत सारी रीज़न्स में से एक रीज़न ये भी है. सो स्टूडेंट, दिस वाज द 3rd जून प्लान. प्लीज़ इसको एक दफ़ा रीड करें और अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.